آپ کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. جلسہ ہمارا آئینی قانونی جمہوری حق ہے. جلسہ انشاءاللہ ہر PMLN ہے انہی کا ایک ایفیلیٹڈ جو ہے نا وہ ادارہ ہے, ان کی ایفیلیٹڈ ان سے ہی الگ ہوا ایک جو ہے نا وہ جماعت ہے, تو ان کو پراپر آزادی ہوگی. لیکن آج سینیریو چینج ہو گیا. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو تو یہ لگ رہا تھا, لیکن اچانک سے وہ آپ کو پرمیشن نہیں ملی آپ کے اکارڈنگ. اگر سپوز صبح تک یہ پرمیشن نہیں ملتی ہے, DC صاحب اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے, تو فردر آپ کا کیا پلان؟ جمعیت علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے زیر اہتمام کل 11 جولائی کو پھول نگر کے اس مقام پر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے قیادت میں یہاں پر ایک عظیم الشان تحفظ مدارس دینیہ عوامی حقوق کانفرنس ہوگی. لیکن ہم حیران ہیں کہ اس جمہوری ملک کے اندر اور اس موجودہ سیاسی حالات میں ایک سیاسی ملک کی عظیم ترین سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام کو یہاں پھول نگر کی دھرتی پر جلسہ کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں, مقامی لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ پھول نگر کسی کی جاگیر نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام پھول نگر کی دھرتی پر کل ہر صورت جلسہ کر کے رہے گی, اور ہم انتظامیہ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کل بہر صورت یہاں پر جلسہ ہوگا اور اسی مقام پر ہوگا جہاں ہم کھڑے ہیں. پولیس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے حفاظتی انتظامات کرے, سیکورٹی کے انتظامات کرے, ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, اور یہ جلسہ کرنا یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ریاست پاکستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں اور ہم اپنے مطالبات رکھ سکتے ہیں. ہم اپنے جو ہے مقاصد اپنے پروگرام سے عوام کو آگاہ کر سکتے ہیں, اور ہم جو منشور رکھتے ہیں اپنے منشور سے عوام کو آگاہ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا جمہوری حق بھی ہے, آئینی حق بھی ہے. ہم کوئی خلاف قانون قدم اٹھانے نہیں جا رہے, اور انشاءاللہ قائد جمعیت بھی کل یہاں پر تشریف لائیں گے, اور یہ اسی مقام پر پھول نگر کے اسی مقام پر کل انشاءاللہ کانفرنس بہر صورت ہو کر رہے گی. اور تمام کارکنوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ پرامن طریقے کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں, دعوتی مہم جاری رکھیں, قافلوں کو تیار کریں, اور کل سب قافلے پھول نگر کی طرف روانہ ہو انشاءاللہ. جیسے مولانا نے فرمایا ہے, اس حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپنا جمہوری آئینی حق رکھتی ہے. جمعیت علماء اسلام نے اس جلسے کا اعلان پچھلے 20-22 دن پہلے سے کر رکھا ہے. جمعیت علماء اسلام کے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے اس کا از خود اعلان کیا. JUI کی پوری مرکزی اور صوبائی قیادتیں کل انشاءاللہ پھول نگر میں موجود ہوں گی, اور جو جلسے کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صوبائی حکومت جو ایک جعلی حکومت ہے, فارم 47 پر بننے والی ووٹوں کو جو ووٹوں کی سودے بازی کر کے بننے والی حکومت, اور یہاں کا پھول نگر کا اور قصور کا وہ سیاسی اجارہ داری رکھنے والے لوگ جن کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے, اور پبلک ان سے اظہار نفرت کر رہی ہے اور اظہار برات کر رہی ہے, اور لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. وہ اپنی ساکھ بچانے, اپنی جھوٹی سیاست بچانے, اپنی جھوٹی حکومت اور جعلی حکومت کو بچانے کے لیے یہ حربے استعمال کر رہے ہیں. ہم ان کو بڑے واضح انداز میں, دو ٹوک انداز میں یہ بتانا چاہتے ہیں, آپ کے تمام حربے ناکام ہوں گے. کسی بھی حربے کو اور کسی بھی آپ کی سازش کو ہم اپنے خاطر میں لانے کے لیے تیار نہیں, پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں. جلسہ ہوگا,
हर सूरत होगा इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान यहाँ खिताब फरमाएंगे। ना हम जलसे की जगह तब्दील करेंगे, ना हम जलसे का वक्त तब्दील करेंगे, और ना ही किसी किस्म का इस पर कंप्रोमाइज करेंगे। हाँ, आप हजरात पुरअमन रहें, अपने जैसे अमीर साहब ने कहा कि आप अपने काम से काम रखें, जलसे के इंतजामात की तरफ तवज्जो करें। जलसा होगा इंशाअल्लाह उल अजीज, और ये जलसा पाकिस्तान और सूबा पंजाब की सियासत में एक अहम किरदार अदा करेगा, और ये बताएगा कि पंजाब के अवाम उनका मुस्तकबिल जमीयत उलमा इस्लाम है। जी आपको इजाजत पहले किसी ने दी थी, यहाँ पर रुकावट डाली जा रही है, इसकी क्या वजह है? हमने इस जलसे के लिए बाकायदा एक प्रोसेस होता है, और वो ये होता है कि हमने डीसी ऑफिस में बाकायदा तौर पर एक जमीयत उलमा इस्लाम की ज़िली जमात की तरफ से एक जमा करवा दिया था पेपर, जिसमें ज़िली जमात ने डीसी साहब को मुत्तले किया था कि हम 11 जुलाई को यहाँ जलसा करेंगे, आप हमें सिक्योरिटी और इंतज़ामी जो सहूलत है वो फराहम करें। उन्होंने 2 दिन पहले हमें बुलाया, बल्कि उन्होंने हमें नहीं बुलाया, बल्कि हमने खुद उनसे रब्ता किया कि 11 तारीख को हमारा जलसा है, और 8 तारीख को हम उनसे मिले कि जनाब 11 तारीख को इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है, JUI की मरकजी क़यादत आ रही है, मौलाना फजल रहमान जो पाकिस्तान का भी असासा है और मुल्क व कौम के रहनुमा हैं, वो इस जलसे के मेहमान खुसूसी हैं, लेकिन आपकी इंतजामिया की तरफ से किसी भी किस्म का कोई लाहे अमल नहीं दिया गया, कोई इंतजामी मामलात पर हमसे बात नहीं की गई। तो उन्होंने कहा जी कि हम इस पर बात कर रहे हैं, बैठते हैं, करते हैं। और फिर उन्होंने शाम को हमारे साथ मुशावरत की, तो उन्होंने कहा जी हमने सूरत हाल का जायजा लिया है, हम आपको बता देंगे इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो सकती है। और इससे ज्यादा उन्होंने मजीद हमसे उस वक्त कोई बात नहीं की। कल उनकी तरफ से हमें यह पैगाम दिया गया कि जी हमने जो सूरत हाल का जायजा लिया है, तो हम इस जलसे की इजाजत नहीं दे सकते। इस जलसे की इजाजत ना देने का कोई ऐसा रीजन, कोई ऐसी ठोस बात उन्होंने हमें नहीं बताई। आज फिर उनकी तरफ से, बल्कि कल वजीर दाखिला ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने हमसे रब्ता किया, बराह रास्त मेरी उनसे बात हुई, उनकी अपनी कॉल आई, और उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो और पॉजिटिव रहें, आपका ये जलसा होगा, और इस हवाले से हम ताउन कर रहे हैं, और थोड़ा हमें टाइम दे दें। तो हमने कहा ठीक है, इंतजामी मजबूरियां होती हैं, और ये जिम्मेदार लोग हैं और अपनी मसरूफियात में होते हैं। आज सुबह फिर उनका मैसेज हमें मिला कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जुमे के बाद आपसे बात करूंगा। तो हमने उनको कुछ रिपोर्ट्स भेजी कि हमारे जलसे के इंतजामात के लिए यहाँ पर जितने पैनाफ्लेक्स लगे हुए थे और जितने हमारे इश्तिहारात लगे हुए थे, बैनर्स लगे हुए थे, वो सारे उतार दिए गए हैं। सुथरा पंजाब की गाड़ियां फिर रही हैं, और ये सरकारी अमला फिर रहा है, पीरा फोर्स के लोग फिर रहे हैं, पुलिस के अहलकार फिर रहे हैं, और वो यहाँ से तमाम के तमाम फ्लैक्स और बैनर्स और इश्तिहारात उतार रहे हैं। सुबह हमने डीसी साहब से ये बात की, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे इसका इल्म नहीं है। तो मैंने उनको ये कहा कि आप मुझे ये बताइए कि जो बोर्ड बाकायदा कमर्शियल लगे हुए हैं रोडों पर, जो इंतजामिया की इजाजत से लगते हैं और उसका किराया होता है, उसका टैक्स अदा किया जाता है, जमात ने उन बोर्ड्स पर बाकायदा अपने फ्लैक्स अवेजा किए, आपके लोगों ने उनको भी उतार दिया। क्या ये आपका इदाराकार है? क्या ये आपका इख्तियार है? इसका जीसी साहब के पास जवाब नहीं था। डीपीओ साहब से हमने ये बात पूछी कि डीपीओ साहब, आपके एसएचओ साहब जाते हैं और वो लोगों को हरासा करते हैं या लोगों को धमकाते हैं, और मस्जिदों में लगे हुए इश्तिहारों को खुर्चा जा रहा है, क्या एसएचओ साहब इतने फारिग हैं कि वो इश्तिहार उतारने पर लगे हुए हैं? तो डीसी साहब इस बात, डीपीओ साहब जो हैं वो इस बात पर गुस्सा कर रहे थे, नाराज हो रहे थे, लेकिन हमने उनको कहा कि आप नाराजगी ना दिखाएं, ये हमारा जमहूरी और आईनी हक है। आज भी जुमे से पहले हमने उनसे मीटिंग की है, लेकिन उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जी हमें हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं बताया जा रहा, या ऊपर से हमें कोई ऐसी कॉल नहीं है। और उनके वजीर दाखिला साहब हमें कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ सियासी ज़ोमा मौजूद हैं, सियासी रहनुमा मौजूद हैं, वो कहते हैं जी हम तो बड़े खुश हैं, हमारे इलाके में एक सियासी शो होने जा रहा है और जमीयत उलमा इस्लाम एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, पूरे मुल्क की नजरें इस पर लगी हैं। फूल नगर जो एक गैर मारूफ इलाका था, आज पूरे मुल्क की नजरें फूल नगर पर हैं, और फूल नगर हो रही है, तो अवाम को तो इस पर खुश होना चाहिए। हम ये समझते हैं ये लोकल सियासी क़यादत को अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, और उन्हें JUI का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है, उसके लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम फिर बता दें, आपका कोई हरबा काम नहीं आएगा, आपकी कोई तदबीर काम नहीं आएगी। जलसा हमारा आईनी, कानूनी, जमहूरी हक है। जलसा इंशाल्लाह हर हाल में होगा, और हम पुरअमन तरीके से जलसा करेंगे इंशाल्लाह। साहब एक और सवाल छोटा सा, कि लोगों को अब से पहले यही लग रहा था कि ये जो गवर्नमेंट है और PMLN है, उन्हीं का एक एफिलिएटेड जो है ना वो इदारा है, उनकी एफिलिएटेड, उनसे ही अलग हुआ एक जो है ना वो जमात है। तो इनको
प्रॉपर आजादी होगी, लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो गया। उसके पीछे क्या वजह है कि लोगों को तो ये लग रहा था, लेकिन अचानक से सिनेरियो क्यों चेंज हो गया? हम एक पाकिस्तान की पुरअमन सियासी जमात हैं, आईन पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान के लिए इस्लाम के लिए और आइन की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी और जमातों के साथ हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, डायलॉग पर यकीन रखते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं। हम पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर हैं, हुकूमत के हर अच्छे इकदाम में उसकी हिमायत करते हैं, उनकी गलत पॉलिसियों पर आइन और कानून के दायरे में रहकर तनकीद करते हैं। जलसा हमारा हक है। अगर मरियम नवाज साहिबा के जलसे हो सकते हैं, अगर सरकारी तकरीबात हो सकती हैं, अगर बाकी चीजें हो सकती हैं, ये जलसा क्यों नहीं हो सकता? हमें नहीं समझ आ रही। इसकी तो वजह हुकूमत बताएगी कि जलसा तो पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए है, इस्लाम के लिए है, मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, आम लोगों को जो मुश्किलात दरपेश है उसके हल के लिए है। कभी हमें ये कहा जाता है कि जी खतरात हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने खतरात का मुकाबला किया है, उन खतरात में चेजुआई ने कुर्बानियां दी हैं। हमने पशीन में जलसा किया जहां पर इंतहाई डेंजरस हालात थे, हमने चारसद्दा में जलसा किया जहां पर खौफ था। तो यहां आपका तो दावा यह है कि हमारे सूबे जैसा पूरा मंसूबा ही कोई नहीं है, हमारे जैसे सूबे जैसी गुड गवर्नेंस ही किसी की नहीं है। फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? आप जलसे के रास्ते में रुकावटें खड़ी करके असल में आप अपनी खुद नाअहली साबित कर रहे हैं। और आपका ये तर्ज अमल बता रहा है कि चाहे वो सीएम साहिबा हो, चाहे उनकी वो मुशीर खवातीन हो या उनकी हुकूमत हो, वो इस जलसे से खौफजदा है। और खौफजदा क्यों है? वो अवाम को वो हक नहीं दे सके, अवाम की खिदमत नहीं कर सके, अवाम उनसे मुतमईन नहीं है। तालीम को बेचा जा रहा है, सेहत को बेचा जा रहा है, अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों ने टैक्सेस ने उनकी कमर तोड़ दी है। इन हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पीरा फोर्स के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, सीसीडी के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, चौकों चौराहों पर लोग खड़े हैं और वो सरापा एहतजाज है। तो हुकूमत घबराई हुई है। तो ये जलसा अवाम के हुकूक की नुमाइंदगी करने के लिए रखा गया है। तो हुकूमत परेशान है। हम हुकूमत को कहते हैं कि आप जलसे से परेशान ना हो, आप अपनी इस्लाह करें। और अगर आप अहल नहीं हैं, और हम ये समझते हैं कि आप अहल नहीं हैं, आपको इख्तिदार और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि अगर अभी तक जो है वो आपको परमिशन नहीं मिली आपके अकॉर्डिंग, अगर सपोज सुबह तक ये परमिशन नहीं मिलती या डीसी साहब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, तो फर्दर आपका क्या प्लान? जमीयत उलमा इस्लाम का कोई जलसा हुकूमती परमिशनों का और एनओसीज का मोहताज नहीं है। हम इनसे ज्यादा पाकिस्तान के वफादार हैं, हम इनसे ज्यादा पाकिस्तानी हैं, हम इनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन हैं। ये कौन होते हैं हमें परमिशन देने वाले, और ये कौन होते हैं हमें इजाजतनामे देने वाले? पुलिस का काम है सिक्योरिटी करना, इंतजामिया का काम है इंतजामी काम करना। वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। इनकी परमिशनों से जलसे नहीं होते, जलसा होगा इंशाल्लाह। परमिशन हमारा मसला नहीं, हुकूमत का मसला है। हमारा मसला जलसा करना है, वो हम करेंगे। उनका मसला है परमिशन दे न दे वो जाने, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें इंशाल्लाह। तो सारे साथी रहे इंशाल्लाह। अभी इंतजामात शुरू हो रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा।